Hello everyone. So let's start our journey. Today we are going to start Biology class 12th, chapter number 8 of unit 8. And name of the chapter is Human Health and Disease. As we have already discussed in last video, which was based on term 2 syllabus. So health topic has been excluded. So we'll start with pathogens. What do you mean by pathogens? Disease causing organisms, be it anything. Disease causing organisms are known as pathogens. So I'll be going line by line, and lastly I'll be explaining you whole paragraph. What does the paragraph want to convey? So wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminthes, etc. would cause disease in man. So such disease causing organisms are known as pathogens. We know what parasites means. So most of the parasites are therefore pathogens as they cause harm to host by living in or on them. Pathogens enter our body by various means. They can enter by various ways, multiply and interfere with the normal vital activities of our body, resulting in morphological and functional damage. Of course, if a pathogen enters in our body by any means, it will cause some damage that might make our body change morphologically, that make damage in our body morphological or functionally. Okay. Pathogens have to adapt to life within the environment of host. For example, pathogens that enter our gut must know the way of surviving in stomach. Of course, जो पैथोजन जानता होगा हमारे गट में उसको कैसे सर्वाइव करना है वही उसमें एंटर करेगा. बाकी अगर नहीं पता होगा तो ऑफकोर्स वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होगा. तो स्टमक एट लो पीएच रेजिस्टिंग वायरस various digestive enzymes. A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here, along with disease, preventive control measures against this disease in general and also briefly described. So firstly we'll talk about the first disease, which is typhoid. Typhoid is caused by a pathogenic bacterium which is named as Salmonella typhi. तो हम लोग ये डिजीज स्टार्ट कर दिए. इसमें हम लोगों को डिजीज का नाम ऑफ कोर्स उसी से हम लोग आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो हमको क्या लर्न रहना चाहिए? मेन है सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी डिजीज के मिलते जुलते हो सकते हैं. तो हमको एकदम लर्न करना है, अच्छे से ध्यान दे के रखना है कि इसका सिम्टम क्या है टाइफाइड का. तो ये पैथोजन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. तो इनकी एंट्री कैसे होती है ये भी ध्यान रखना. थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ओके. दे माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड. और इसमें जो फीवर है वो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगती, भूख बहुत कम हो जाती है या फिर लगती नहीं है. ठीक है. These are the common symptoms. Intestinal perforations and death may occur in severe cases. Intestinal perforations मतलब इंटेस्टाइन में मतलब होल्स जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है. टाइफाइड कैन बी कन्फर्म्ड बाय अ टेस्ट दैट इज नॉन एज वाइडल टेस्ट. A classic case in medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary. So इसके पीछे एक स्टोरी है कि टाइफॉइड कैसे फैला. तो एक टाइफॉइड मैरी नाम से, ठीक है, एक वो थी. तो उनको जो है वो एक प्रोफेशन से वो एक कुक थी. तो वो जब फूड बनाती थी ऑफ कोर्स, तो कुक थी, तो इस वजह से वो कंटेमिनेट हो गया फूड. और फिर ये टाइफाइड जो है वो काफ़ी सालों तक वो फूड बनाती रही, तो वो फैलता रहा थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड. तो शी वॉज द कैरियर. ऐसा कहा जाता है कि मैरी जो है वो कैरियर थी. तो उन्हीं के नाम के पीछे नाम रखा गया डिजीज़ का.
Next is pneumonia. Pneumonia is caused by bacteria and that is named as Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae. So one is Streptococcus pneumoniae and other is Haemophilus influenzae. These are responsible for pneumonia disease and it infects alveoli. As we all know, alveoli are the air sacs of our lungs या balloon like to air filled sacs. ठीक है. As a result of infection, alveoli gets filled with fluid leading to severe problems in respiration. तो इसमें हमको respiration बहुत सारी problems आती हैं. The symptoms of pneumonia include fever, chilling, cough, headache. तो symptoms मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इन पे गौर करके रखना ध्यान से. In severe cases, lips and fingers, nails may turn bluish in color, grey to bluish in color. A healthy person acquires infection by droplets. तो infection कैसे acquire किया जाता है? Droplets के through या फिर aerosols released by infected person or even by sharing glasses, utensils and other infected person. Dysentery, plague, diphtheria ये सब आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड नहीं है तो नो नीड. बाकी दे दिया गया है कि ये भी कुछ अलग बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस हैं. तो अभी तक हमने बैक्टीरिया वाली एक तो टाइफाइड पढ़ी, दूसरी हमने निमोनिया पढ़ी. नेक्स्ट हम लोग जो रीड करने जा रहे हैं आगे वो है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है. तो ये मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट है और बहुत कॉमनली किसी को भी हो जाती है. ठीक है. और ये 3 से 7 दिन लेती है, मैक्स टू मैक्स ये इतना ही दिन रहती है. अगर इससे ज़्यादा दिन रहती है तो आप लोगों को फिर डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है. मोस्टली हम लोग ये देखते हैं मोस्ट कॉमनली कि 3-4 दिन में हमारी जो जुकाम है वो ठीक हो ही जाती है. अगर नहीं है तो फिर आप लोग डॉक्टर के जाके ट्रीटमेंट करवाइए. हो सकता है वो कोई सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो ये नोज़ को और रेस्पिरेटरी पाथ जो है उसको इफ़ेक्ट करती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती है और वायरस ही कोज करते हैं इसको. ठीक है. तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है यूजुअली? सोर थ्रोट, होर्सनेस मतलब गला खराब होना, है ना, कफ, खांसी, सिर दर्द, थकान, टायर्डनेस. ठीक है, ये सब. और नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, तो नाक का बहना, ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं. ड्रॉपलेट्स, इसका भी इन्फेक्शन कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से. ठीक है. जो कि किसी भी चीज़ के थ्रू हमारे पास आ सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है वो चीज़. जैसे कि पेन्स पे अगर ड्रॉपलेट्स लग गए हैं, किसी ने स्नीजिंग की और पेन्स पे, बुक पे और डोर पे, डोर हैंडल पे, कहीं पे भी. नेक्स्ट जो डिजीज़ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है मलेरिया. हमें पता है बहुत डेडली डिजीज़ कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है. तो ये कैसे होता है? मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो है प्रोटोजोआ. और प्रोटोजोआ में भी कौन? प्लाज्मोडियम. और इसकी 3 डिफरेंट स्पीशीज जो मलेरिया कोज करती हैं वो है पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपेरम. मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. और सबसे ज़्यादा जो डेडली, सबसे ज़्यादा जो फियर्ड मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से कोज होता है. ठीक है. तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए. मैलिग्नेंट मलेरिया हम पढ़ ही चुके हैं और कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होता है, मोस्ट सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है हमारी बॉडी को. इसके जो मलेरिया के जो है ना वो 2 होस्ट होते हैं. अब ये डिजीज़ कैसे फैलती है चलो एक बार इसके साइकिल को देख लेते हैं. उससे पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ साइकिल कैसे. जैसे फीमेल एनोफिली मॉस्क्यूटो है, ठीक है, वो पहला, और एक ह्यूमन. ठीक है, दोनों होस्ट है हमारे लिए मलेरिया जो कोज करता है. तो फीमेल एनोफिली ने किसी ह्यूमन को बाइट किया, ओके, और उसके फीमेल एनोफिली के जो गट था उसमें वो स्पोरोजोइट्स थे. वो हमारी बॉडी में एंटर किए, बॉडी में से लीवर में ट्रांसफ़र हो गए, लीवर में जाके लीवर सेल्स में उन्होंने डिवाइड किया. फिर उसके बाद वो वहाँ से बर्स्ट आउट होके और हमारे ब्लड में और आरबीसीज में आ गए. फिर आरबीसीज में वो
डिवाइड करने लगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो बर्स्ट आउट हुए। तो अब वो जब बर्स्ट आउट होते हैं तो चिलिंग, रिकरिंग मतलब फीवर, मतलब बुखार होगा फिर उतर जाएगा, फिर होगा फिर उतर जाएगा, मतलब बार बार कभी लगता है हाँ है अभी फीवर, थोड़ी देर बाद ही लगता है कि नहीं है। तो ये होती रहती है, ये मलेरिया का एक कॉमनली देखे जाने वाला सिम्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आरबीसी से बाहर निकल के, और ये देखिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जो गेमेटोसाइट है वो मेल फीमेल में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद ये जो मॉस्किटो है ये हमारी बॉडी में मेल फीमेल गेमेटोसाइट्स बन चुके हैं, बस हमारी ब्लड बेल में वो चल रहे हैं, ठीक है। अब कोई मॉस्किटो ने अगर हमको फिर से बाइट किया जिसके गट में स्पोरोजोइट्स नहीं था, वो नॉर्मल मॉस्किटो था, उसने हमारे बॉडी में बाइट किया जस्ट टू टेक ब्लड मेल, ठीक है, और फिर उसमें एंटर कर गया मॉस्किटो की बॉडी में। फिर मॉस्किटो की बॉडी में वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है और वहाँ पे फिर वो स्पोरोसाइट्स तैयार होते हैं और फिर वो सैलिवरी ग्लैंड तक पहुँच जाते हैं गट से, ठीक है। गट में वो फर्टिलाइजेशन किए, सैलिवरी ग्लैंड पर पहुँचे, फिर उसकी सलीवा में आ चुके स्पोरोसाइट्स। अब मॉस्किटो कभी भी किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो फिर वो मलेरिया का एक पेशेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चलो एक बार रेड भी कर ही लेते हैं कि रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। जैसे ही आरबीसी फटती है हीमोजोइन बाहर आता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days, और 3 से 4 दिन तक ये सिचुएशन चलती रहती है। When a female anopheles bites infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in salivary gland. Okay, when these mosquito bite a human, sporozoites introduced into his or her body, as I have already explained. Okay, it is interesting to note that malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. ठीक है, आधी लाइफ साइकिल होगी ह्यूमन में, आधी लाइफ साइकिल मॉस्किटो में हो रही है। ओके, सो द फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इज द वेक्टर, वेक्टर मीन्स ट्रांसमिटिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है अमेबियासिस। एमेबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है इस डिजीज को, और इसके अंदर जो पैरासाइट है वो है प्रोटोजोअन, ठीक है, एंड इट्स नेम इज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, यानी कि बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत तेज, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, यानी कि स्टूल्स में ब्लड क्लोट्स आते हैं, म्यूकस आता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज मैकेनिकल कैरियर, इसके कैरियर कौन है, हाउस फ्लाइज, ठीक है, जो गंदी जगहों पे बैठ जाती हैं फिर हमारे फूड पे, एंड serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, ठीक है। तो वो गंदगी में बैठ के फिर वो वही मक्खियाँ अगर हाउस फ्लाइज अगर फूड पे बैठेंगी, फूड प्रोडक्ट्स पे बैठेंगी, तो ऑफकोर्स वो इन्फेक्शियस का एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा एक जाल बनाती हैं, देयरबाय कंटेमिनेटिंग देम, फूड को ख़राब कर देती हैं, और फिर हम लोग भी एक उनके एजेंट बन जाता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ड्रिंकिंग वाटर में भी हो सकता है, ये हो सकता है वाटर भी कंटेमिनेट हो सकता है, फूड तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सीधा डायरेक्ट ऑरली एंटर होकर और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी इज एस्कैरियासिस। Ascariasis is caused by ascaris. Ascaris is commonly known as roundworm. Okay, so ascariasis में क्या होता है, नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन जब इनकी नंबर
काउंट्स बढ़ जाते हैं तो फिर ये एक एस्केरियासिस कोज करता है। एस्केरियासिस हमारी बॉडी में होते हैं, इट्स नॉट अ नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट। सो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है इंटरनल, ठीक है, तो हो सकता है स्टूल्स के साथ बाहर आ भी जाए, मस्कुलर पेन होता है, फीवर भी हो जाता है, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, जहाँ से इंटेस्टाइन का जो पैसेज है, पाथ है, वो ब्लॉक हो जाता है। एग्स ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे हाउस फ्लाइज एक तरह से कर सकते हैं रोल ट्रांसमिटिंग एजेंट का। एंड विच कंटेमिनेट सॉइल, सॉइल को कंटेमिनेट कर देते हैं, वाटर को, प्लांट्स को। तो सॉइल को कंटेमिनेट किसका मतलब सीधी सी बात है कि फसलें भी कंटेमिनेट हो ही सकती है, फिर उन्हीं का फूड अगर हमने खा लिया तो हमें डिजीज हो सकती है। A healthy person acquires infection through contaminated water and vegetables and fruits. Next disease is filariasis और elephantiasis. इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे नॉर्मली तो कहते हैं कि लिम्स वाले पार्ट में या फिर हमारी बॉडी के नीचे वाले, बाकी कहीं पे भी हो सकता है एलिफेंटियासिस। नॉर्मली देखा जाता है कि ये थाइस के पोर्शन में हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पाँव जो है वो एलिफेंटियासिस नाम क्यों दिया, हाथी जैसा हो जाता है, मतलब बड़ा, ठीक है, स्वेलिंग कह सकते हैं इस वजह से। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज़ है एक वॉर्म कॉज करता है, फिलेरियल वॉर्म, जो उसको विशेरेरिया भी बोला जाता है, और इसकी दो डिफरेंट स्पीशीज है, विशेरेरिया मलाय एंड विशेरेरिया पेनक्रॉफ्टी, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन होता है एक तरह का, धीमे धीमे ये इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, ठीक है, और फिर बहुत सालों के बाद जाके इसका असर दिखता है। यूजुअली lymphatic vessels of the lower limb and the disease is called elephantiasis और filariasis। तो जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, मोस्ट ऑफन देखा गया है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई भी पोर्शन हमारा इफेक्ट इससे इफेक्ट हो गया है, ये उसके अंडर आ गया है, तो फिर डिफॉर्मिटीज होंगी, फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगा। The pathogens are transmitted to healthy person through the bite of a female mosquito vector। तो ये जो डिजीज है ये एक मॉस्किटो वेक्टर के बाइट से होती है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो से। वो नेक्स्ट डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग वॉर्म्स। तो रिंग वॉर्म्स या फिर हम लोग दांत का, वो जो दांत खुजली वगैरह जो हम देखते हैं टीवी में, शायद सबने देखा भी होगा, नॉर्मली हो भी जाती थी पहले, अब नहीं होती है। अब क्योंकि सब लोग इतना साफ सफाई से रहने भी लगे, उन लोगों को खुद को भी समझ आने लगा कि हाँ भाई क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ अपनी पर्सनल ही होनी चाहिए। तो ये जो डिजीज़ है ये फंगी कोज करती है, और इसके अंदर जो जीनस, जिन जीनस के फंगीज कोज करते हैं मोस्ट कॉमनली वो हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। इन जीनस की जो फंगी है वो रिंगवॉर्म्स कॉज करती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत आसानी से फैल जाती है, और ये कैसे दिखते हैं, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे रूखे सूखे से अजीब से दिखेंगे, बहुत ही डिफरेंट, ठीक है, और बहुत अजीब सा भी फील होता है इनको देखिए, इचिंग सी फील होती है, सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प, कहीं पे स्कैल्प पे भी हो जाता है, स्किन पे भी हो जाता है, नेल्स में भी दिखने लगता है। मेन सिम्टम्स आर ऑफ दिस डिजीज, दिस लेजन्स आर द मेन सिम्टम्स। तो इनमें इंटेंस इचिंग होती है, हीट और मॉइस्चर हेल्प द फंगी टू ग्रो। और सीधी बात है कि इचिंग होगी, हम लोग खुजाएंगे तो वहाँ पे हीट क्रिएट होगी और फिर वो फंगी और ग्रो करेगी। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसको खुजाएंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन रहा भी नहीं जाता, ठीक है। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स, इस वजह से स्किन फोल्ड्स में ऐसे गैप सा बन जाता है, सच एज दोस इन ग्रोइन, ग्रोइन मतलब जैसे, या फिर बिटवीन द टोस, समझ आ रहा है, जैसे पैर की उंगली, इन दोनों टोस, हाथ, कहीं पे भी हो सकता है, ग्रोइन कोई से भी ग्रोइन में हो सकती है। तो रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग टॉवल्स। तो हमेशा जो टॉवल्स हैं वो अपने
कोई किसी का दूसरे का यूज़ नहीं करो, हो सके तो साफ़ सुथरा टॉवल यूज़ करो, ठीक है। क्लॉथ्स, किसी दूसरे के कपड़े, ऐसे नहीं कि भाई चल दोस्त से कपड़े ले आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन तो कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको तो कॉम्ब भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई सोचे कि भाई क्या होगा, कॉम्ब भी तो है, इससे थोड़ी ना फैल रहा है। कपड़ों से ठीक है, कपड़े यूज़ नहीं करेंगे, टॉवल यूज़ नहीं, लेकिन कॉम्ब क्योंकि स्कैल्प में भी हो सकता है, ठीक है। तो साफ़ सुथरी सी बात ये है कि साफ़ सफाई से रहना चाहिए हमें, और क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो अच्छा है ना, हम लोग साफ़ सफाई से रहेंगे तो घर सब अच्छा रहेगा और कोई डिजीज़ भी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है, डेंगू और चिकनगुनिया जो है हमारी बुक में नहीं है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है, और पुराने वाले मैंने जो रिवाइज हुआ था सप्लीमेंट्री मटेरियल 2014 में, उसमें था। और मैंने आपके लिए नोट्स जो तैयार किए हैं, मैंने उसमें भी उसको ऐड कर दिया है, और नोट्स का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बाकी नोट्स देख लेना, बहुत सही लगेंगे आप लोगों को, मैंने बहुत मेहनत की है, तो होपिंग कि आप लोगों को अच्छे ही लगे। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि हम इन डिजीज़ से कैसे इनके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, इनका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम कर सकते हैं जिससे कि डिजीज़ ना फैले। तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, मतलब खुद भी क्लीन रहो और पब्लिक मीन्स आसपास के एरिया को भी कोशिश करो क्लीन रखने की, ये बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के। तो पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड करता है बॉडी क्लीनिंग, है ना, तो उसमें कंजम्पशन ऑफ क्लीनिंग वाटर, क्लीन वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। तो कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, ठीक है, जब भी आप मार्केट से लाएं तो उसको पहले वॉश कर लें अच्छे से, धो के फिर ही खाएं। फूड जो है अगर वो अनकवर्ड है तो उसको ट्राई करें कि ना खाएं, या फिर जब भी खाना वाना बनाए उसके बाद सब चीज़ों को ढक दें ताकि क्लीनलीनेस बनी रहे, कोई डिजीज़ होने का खतरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। पब्लिक हाइजीन कैसे कर सकते हैं हम लोग, पब्लिकली कैसे हाइजीनिक रख सकते हैं, अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, तो उसमें इंक्लूड करता है डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। ऐसे नहीं कि कचरा कहीं भी पड़ा है आसपास में, अगर हमारे मान लो घर के आसपास कहीं कचरा पड़ा भी तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है डिजीज़ कॉज करने का, ठीक है। तो क्लीन हो हमारे आसपास का एरिया, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, pools, cesspools, tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering, ठीक है। तो जैसे डिसइंफेक्शन या फिर पीरियोडिक क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, जहाँ भी हम लोग जैसे कहीं पे वाटर कूलर्स लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पे जो ऊपर जो टंकियाँ रखी जाती हैं, जो टैंक्स रखे जाते हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। हफ्ते में नहीं तो कम से कम 2 हफ्तों में तो हो ही जाए, ताकि पता लगता है कि हाँ भाई टैंक में वाटर क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा। उससे क्या हमें बहुत फ़ायदा होगा, एक तो हम रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे तो कहीं कोई डिफेक्ट भी होगा वो भी नज़र आ जाएगा, साथ में हम जो पानी पी रहे हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं, क्लीन होगा, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। These measures particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water। तो infectious agent फूड और वाटर के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट होते हैं, टाइफाइड में, ठीक है, निमोनिया में, कॉमन कोल्ड में, इन सब में नहीं, टाइफाइड में, अमेबियासिस में, एस्केरियासिस में, सॉरी मैं आगे पहुँच गई। तो इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस, जैसे एयरबॉर्न मतलब जो एयर के थ्रू होती है, जैसे कि निमोनिया, ठीक है, कॉमन कोल्ड, वो एयर बोर्न डिजीजेस। इन एडिशन टू अबव मेजर्स, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड।
तो जो एयरबॉर्न डिजीज़ है उसमें हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को जुकाम हुआ है हम बिल्कुल एकदम टच होके बैठ रहे हैं, कोई गैप नहीं है, या फिर हम लोग अपना हैंकी वगैरह जो जिसको है उसको भी थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए, साथ में सामने वाले को भी लेने चाहिए ताकि वो खुद इन्फेक्टेड ना हो। अपनी सेफ्टी अपन खुद ही कर सकते हैं। For disease such as malaria, filariasis that are transmitted through insect vectors, तो इनसे बचने के लिए क्या करें हम? The most important measure is to control and eliminate the vector and their breeding places. तो उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे उनका हब होता है, मतलब जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ग्रोथ होता है, उन प्लेसेस को हटा दीजिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, यानी कि आसपास में अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो उस रुकावट को हटाओ ताकि पानी चलता रहे, वरना रुके हुए पानी में मच्छर होने के, मॉस्किटोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और हो भी जाते हैं। इन एंड अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट इज रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर जो हम लोग यूज़ करते हैं उनकी साफ़ सफाई होती रहनी चाहिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गिम्ब्यूजिया, इस पर थोड़ा फोकस रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप लोगों को राइटिंग पार्ट टर्म 2 में जो आपको पेपर आएगा वो लिखने वाला होगा, राइट। तो फिर ये फ़िश के बारे में आ सकता है कि भाई गिम्ब्यूजिया फ़िश किस लिए यूज़ होती है। तो इस तरीके से इस जगह से पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इन पॉइंट्स को याद रखो। ओके, तो इन पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस कीजिए ऐसे फिशेस को। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो के लार्वे पे फीड ऑन करती है, तो फिर मॉस्किटो के जो लार्वे हैं अगर उन पे फीड ऑन कर गई तो फिर मॉस्किटो की ग्रोथ कम हो जाएगी, पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स, जैसे हमारे ड्रेनेज एरियाज हैं, फार्म है आसपास, मान लीजिए हमने कोई एक छोटा गार्डन टाइप बना रखा है तो उसमें स्प्रे करते रहना इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सब, ठीक है। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैशिंग। वायर मैश जानते हैं, मतलब जाली के गेट या फिर जाली वगैरह पतली सी बारीक सी, ताकि मॉस्किटोज कम से कम एंटर कर पाए, पर फिर भी मच्छर रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो कर लें। सच प्रिकॉशंस हैव become more important, especially in light of recent widespread incidences of vector-borne Aedes mosquito, vector-borne diseases like dengue and chikungunya in many parts of India. Okay, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है हमारी हेल्थ को, तो इसीलिए ये आज फ़िलहाल ज़्यादा बढ़ गया इन सब चीज़ों का प्रिकॉशंस। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious disease. The use of vaccines, immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. पूरी तरह खत्म हो चुकी है। A large number of infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to large extent by use of vaccines. Biotechnology, about which you will study in Chapter 12, is verge of making available newer technologies, safer vaccines. Okay, तो ये तो next is immunity. So please like, share and subscribe the video. Thank you.